Hello everyone. Now again welcome to video lecture class. Today I am going to talk about the topic that is use of technology, and also the another point is use or role of NGO in school education. The particular topic related to MEd semester 1 paper 3 education studies in unit 4. इसके आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एमएड सेमेस्टर 1 के अंतर्गत पेपर नंबर 3 पेपर एजुकेशन स्टडीज़ के यूनिट 4 में जो टॉपिक है वह है विद्यालयी शिक्षा में प्रौद्योगिकी की उपयोगिता, साथ ही साथ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी एनजीओ की विद्यालयी शिक्षा में भूमिका। इन दोनों के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम use of technology in school education. As you know that the present era or the present situation of the classroom, especially in secondary classes, the particular children that is related to secondary classes, their thinking capacity, creativity and along with attitude are too much high. उनकी सोच, उनकी सृजनात्मकता या उनके आधार कार्य करने की जो क्षमता वह अत्यधिक होती है। आवश्यकता इस चीज़ की है कि कैसे उनकी जो ये सृजनशीलता है या जो उनकी गतिविधि है या उनकी जो सोच है, विचारधारा है, उसको और अत्यधिक मात्रा में कैसे बढ़ाया जाए। तो उसमें प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी शिक्षा को अगर और अधिक क्रियाशील, बच्चों को शिक्षा में और अधिक क्रियाशील बनाना है तो टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि वर्तमान समय की ये आवश्यकता है। दैट इज द नीड ऑफ द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम। एंड द अनदर वन दैट इज रोल ऑफ एनजीओ ऑल्सो, दैट मीन्स एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन द अवेयरनेस ऑफ द एजुकेशन, बिकॉज सो मेनी पेरेंट्स, बहुत सारे ऐसे अभिभावक हैं जो अभी भी शिक्षा से वंचित हैं और वो अपने बच्चों को भी वंचित रखना चाहते हैं। डैट मीन्स वे स्वयं अगर नहीं सीखे हैं तो बच्चों को भी सोचते हैं कि वो काम करेगा उसी में फ़ायदा है, शिक्षा से उसकी कोई आवश्यकता पूरी नहीं होगी। तो ये जो सोच है, दैट मीन्स दिस टाइप्स ऑफ थिंकिंग और दिस टाइप्स ऑफ व्यू ऑलवेज डिस्करेज द चिल्ड्रेन इन देयर पार्टिकुलर हिज हर एम और लाइफ। उनकी जो जीवन की जो सोच है, जो तैयारी है, उसको पूरी तरह से प्रभावित करती है। मैं अब आपको और इसे विस्तार से बताने जा रहा हूँ। नाउ अगेन वेलकम टू वीडियो लेक्चर क्लास एमएड सेमेस्टर 1 पेपर 3 एजुकेशन स्टडीज। नाउ पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन स्कूल एजुकेशन। नंबर 1 I have also discussed in the earlier video. Now today I am going to talk about number 2 use of technology in school education and number 3 role of NGO in school education. First, number 2 use of technology in school education. First I will introduce the particular topic. Education technology refers to the use of technology in educational setting, whether it be elementary and secondary school, colleges and universities, corporate training site or independent study at home. Educational technology, next point, educational technology has both general and specialized meanings. Next point, a specialist in educational technology, in particular college and university faculty who conduct research and teach courses on educational technology, prefer the term instructional technology because it draws attention to the instruction use of educational technology. This term represents both a process and the particular devices that teachers employ in their classroom. Now, current technologies used in school. Whatever learning theory a teacher may embrace, many technology exist in schools to enhance instruction and to support student learning. Following are a few examples
of computers being used to support four goals. Number 1, building student capacity for research. Number 2, making student inquiry for realistic. Number 3, enabling student to present information in applying forms. Number 4, offering students access to learning resources within and beyond the school. Number 1, student research. Students once relied upon local and school libraries and their printed references material to research topics. Now, however, computer technology provide access to digital version of these references and to libraries worldwide. Number 2, student inquiry. Educational reformer believe education needs to be real and authentic for students. Technology can engage students in real world activities. In the science, electronic probes allow science students to collect precise weather or chemical reaction data and digitally trace trends and answer hypotheses. Number 3, constructing new knowledge. With advanced technologies, students can present their original data or newly interpreted data by integrating digital video, audio, and text into word processed documents, multimedia, presentation, video, or web based documents. Number 4, access to learning resources. Some schools lack the resources to provide all of the courses that students may need or want. A variety of technologies, example interactive television, internet video conferencing, provide students the opportunity to participate in a class that is located in a different school, in a different town, and even in a different state or country. Now, number 3, role of NGO in school education. First, I will introduce the role of NGO in school. As you know that NGO are the bodies which function free from the control of government, that means government of India. NGO, that is non-government organization. These are said to be non-profit government bodies which work for the welfare of societies. They act as a mediator between society and government. Next point, NGO not only helps to spread education among the underprivileged children in India across various cities but also work towards protecting the basic right to education of children. And the last point, it provides the attitude, opportunity, and exposure to good education to such children and helps them develop to be at par with the more privileged children of the society in terms of literacy. Now, the major roles of NGO in India for school education are as: number 1, increasing the enrollment in schools; number 2, developing learning skills in local schools and communities; number 3, make education reach to such masses who are unable to attend formal schools due to reason like poverty, proximity, distance, health issues, etc. Now, number 4, replicate their education models and scale them up to serve large number of children to achieve large scale impact. Number 5, provide inclusive education to children with special needs. Number 6, vocational training to children with permanent disabilities. Number 7, works as catalyst to bring sustainable change in the lives of the children with a life cycle approach of development. Now, अब मैं इन सभी चीज़ों को थोड़ा but in role of NGO, also some example of NGO, all of you that is note down. Number 1, Bingo, BINGO, a big international NGO such as the Red Cross. Number 2, INGO, INGO, an international NGO such as Oxfam. Next, INGO, an environmental NGO like Greenpeace.
Ringo, a religious international NGO such as Catholic Relief Services, and last one is CSO, a civil society organization like Amnesty International. ना अब मैं इन सभी चीज़ों को थोड़ा हिंदी में स्पष्ट कर दूं। विभिन्न हितधारकों की भागीदारी। नंबर 2, एक नंबर जो है यानी रोल ऑफ मास मीडिया, उसको मैंने पहले के वीडियो में दे चुका हूं। आज मैं बात करने जा रहा हूं नंबर 2, स्कूल शिक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग, और नंबर 3, स्कूली शिक्षा में यानी विद्यालयी शिक्षा में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका। सर्वप्रथम नंबर 2, विद्यालयी शिक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग। परिचय। फर्स्ट मैं सर्वप्रथम इसके परिचय को मैं आपको दूं कि ये परिचय एक्चुअल में इसका आधार क्या है कि प्रौद्योगिकी का उपयोग के बारे में। शैक्षिक प्रौद्योगिकी शैक्षिक स्तर में प्रौद्योगिकी के उपयोग को संदर्भित करती है, चाहे वो प्राथमिक या माध्यमिक या कॉलेज या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय, प्रशिक्षण स्थल या घर पर स्वतंत्र अध्ययन करता हो। शैक्षिक प्रौद्योगिकी के अंतर्गत सामान्य और विशेष अर्थ दोनों होते हैं। सार्वजनिक और बहुसंख्यक शिक्षकों के लिए यह शब्द कंप्यूटर, टेलीविज़न या अन्य प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के अनुदेशात्मक उपयोग को संदर्भित करता है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ विशेष रूप से महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के संकाय में जो शैक्षिक प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान, शिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, वे निर्देशात्मक प्रौद्योगिकी शब्द को पूरी तरह से ज़्यादा उपयोग करना पसंद करते हैं, क्योंकि यह शैक्षिक प्रौद्योगिकी के अनुदेशात्मक उपयोग की ओर ध्यान आकर्षित करता है। यह शब्द एक प्रक्रिया और विशेष उपकरणों दोनों का प्रतिनिधित्व करता है जो कि शिक्षक अपनी कक्षाओं में नियोजित कर सकते हैं। ये इसका शैक्षिक प्रौद्योगिकी का सबसे बड़ा आधार था। अब स्कूलों में प्रयुक्त वर्तमान प्रौद्योगिकियाँ। एक शिक्षक शिक्षण सिद्धांत का निम्नलिखित उपयोग कर सकता है। शिक्षा को बढ़ाने और छात्रों को सीखने में सहायता करने के लिए कई प्रौद्योगिकियाँ मौजूद हैं। निम्नलिखित 4 लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए उपयोग किए जा रहे कंप्यूटर के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अनुसंधान के लिए छात्र क्षमता का निर्माण। नंबर 2, छात्र की पूछताछ को अधिक यथार्थवादी बनाना। छात्रों को आकर्षक रूपों में जानकारी प्रस्तुत करने में सक्षम बनाना। नंबर 4, छात्रों को स्कूल यानी विद्यालय के भीतर और बाहर सीखने के लिए संसाधनों तक पहुँच प्रदान करना। नंबर 1, छात्र शोध। छात्रों मुख्यतः स्थानीय और विद्यालय पुस्तकालयों और शोध विषयों के लिए उनकी मुद्रित यानी प्रिंटेड संदर्भ सामग्री पर भरोसा करते हैं। हालांकि कंप्यूटर प्रौद्योगिकियां इन संदर्भों के डिजिटल संस्करणों और दुनिया भर के पुस्तकालयों तक पहुंच प्रदान करती हैं, यानी ये वहां तक पहुंच सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर हम लोग प्रिंटेड पर ही छात्र हमारे भरोसा करते हैं, उस अनुसार पढ़ाई करते हैं। नंबर 2, छात्र की पूछताछ। शैक्षिक सुधारकों का मानना है कि छात्रों के लिए शिक्षा वास्तविक और प्रामाणिक दोनों होनी चाहिए। प्रौद्योगिकी वास्तविक दुनिया की गतिविधियों में छात्रों को संलग्न कर सकती है। विज्ञान में इलेक्ट्रॉनिक जांच विज्ञान के छात्रों को सटीक मौसम या रासायनिक प्रतिक्रिया डेटा एकत्र करने और डिजिटल रूप से रुझान का पता लगाने और परिकल्पनाओं का जवाब देने की अनुमति देती है। नंबर 3, नए ज्ञान का निर्माण। उन्नत तकनीकों के साथ छात्र डिजिटल वीडियो, ऑडियो और पाठ को शब्द संसाधित दस्तावेजों, मल्टीमीडिया प्रस्तुतियों, वीडियो या वेब आधारित दस्तावेजों में एकीकृत करके अपने मूल डेटा या नई व्याख्या किए गए डेटा को प्रस्तुत कर सकते हैं। नंबर 4, सीखने के संसाधनों तक पहुंच। कुछ विद्यालयों में उन सभी पाठ्यक्रमों को उपलब्ध कराने के लिए संसाधनों की कमी होती है जिनकी छात्रों को आवश्यकता हो सकती है। अतः विभिन्न प्रकार की प्रौद्योगिकियां जैसे इंटरैक्टिव टेलीविज़न, इंटरनेट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग छात्रों को एक ऐसी कक्षा में भाग लेने का अवसर प्रदान करती है जो एक अलग स्कूल में, एक अलग शहर में और यहाँ तक कि एक अलग राज्य या देश में भी स्थित हो, वहाँ पर भी उनको ये सुविधा मिल सकती है। अब मैं तीसरे नंबर की बात कर रहा हूँ, स्कूली शिक्षा में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका। सर्वप्रथम मैं थोड़ा परिचय इसके बारे में दे दूँ, NGO के बारे में, कि एक्चुअल में NGO क्या होता है। NGO यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक निकाय है जो कि सरकारी नियंत्रण से मुक्त होकर कार्य को संपन्न करती है।
इन्हें गैर लाभकारी सरकारी निकाय कहा जाता है, जो कि समाज के कल्याण के लिए मुख्य रूप से कार्य करते हैं। वे समाज और सरकार के बीच मध्यस्थ का भी काम करते हैं। एनजीओ एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन न केवल भारत में विभिन्न शहरों में यद्यपि विशेषाधिकार प्राप्त बच्चों के बीच शिक्षा का प्रसार करने में भी मदद करता है, बल्कि बच्चों की शिक्षा के मूल अधिकार की रक्षा करने की दिशा में भी एनजीओ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ऐसे बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए एक दृष्टिकोण, अवसर, साथ ही साथ एक ऐसा आधार प्रदान करता है जो उन्हें साक्षरता के मामले में समाज के अधिक विशेषाधिकार प्राप्त बच्चों के बराबर होने में भी मदद कर सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि गैर सरकारी संगठनों की भूमिका खासकर जागरूकता में विद्यालयी शिक्षा, क्योंकि जब तक जागरूक नहीं होंगे पेरेंट्स वो या अभिभावक, तब तक जो है यह शिक्षा बच्चों के पास नहीं पहुंच सकती है। तो गैर सरकारी संगठन ये शिक्षा को खासकर अवेयर करने यानी जागरूक करने में, समाज को जागरूक करने में मदद करते हैं। विद्यालय शिक्षा के लिए भारत में गैर सरकारी संगठन की प्रमुख भूमिका इस प्रकार है। नंबर 1, स्कूलों में नामांकन बढ़ाना, स्थानीय स्कूलों और समुदाय में शिक्षण कौशल विकसित कराना, ऐसे लोगों तक शिक्षा पहुंचाएं जो गरीबी, निकटता की दूरी, स्वास्थ्य के मुद्दों आदि जैसे कारणों के कारण औपचारिक स्कूलों में भाग लेने में असमर्थ हैं। नंबर 4, अपने शिक्षा मॉडल का उपयोग करें और बड़े पैमाने पर प्रभाव प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में बच्चों की सेवा करें। नंबर 5, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करना। नंबर 6, अस्थायी विकलांग बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना। नंबर 7, विकास के जीवन चक्र दृष्टिकोण के साथ बच्चों के जीवन में अस्थायी परिवर्तन लाने के लिए एक उत्प्रेरक रूप में काम करें। लास्ट में कुछ ऐसे जो गैर सरकारी संगठनों का उदाहरण मैं बता दूं। बिंगो एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ जैसे कि रेड क्रॉस के जैसा है। इनगो ऑक्सफैम जैसा अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ है। इंगो ग्रीन पीस की तरह एक पर्यावरण एनजीओ है। रिंगो एक धार्मिक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ जैसे कैथोलिक रिलीफ सर्विसेज के अंतर्गत है। और लास्ट में CSO जो कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे नागरिक समाज संगठन के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से मैंने आज ये 2 टॉपिक जो कंप्लीट किया मैंने, जो कि यूनिट 4 का था सपोर्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत, और जो स्टेक होल्डर्स के बारे में जो बातें जिसमें टीचर ऑर्गेनाइजेशन या कम्युनिटी मेंबर्स, फैमिली के बारे में आगे के क्लास में बात करूंगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।